Это лалита рага. इस ललित राग में 2 पद गाए जाते हैं. В этой лалита раге 2 пада есть. इसके बाद फिर सुबह का राग होता है बिलावल. Потом идет следующая рага, утренняя Билаван. इसके बाद ये मल्हार में गाए जाते हैं. Потом Маляхара рага. ये पावस का समय के पद होते हैं, ये पावस ऋतु में गाए जाते हैं. पावस ऋतु ये कौन सा ऋतु? जब श्रावण लगता है उससे पहले पावस ऋतु शुरू होती है. बरसात ऋतु. वर्षा ऋतु जब शुरू होती है उसको कहते हैं पावस ऋतु. Паваса риту, то есть это сезон дождей, когда начинается первый месяц. Павас это риту. Гуру Пурнима вот в это время. И в середине, в общем, в середине июля. И тогда поют в честь гуру этот пад. तो इस पद में श्री गुरुदेव जी, बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं. В этом паде Гурудевджи Бихарини Девджи Махарадж говорит: श्री गुरु सेवत सबे सहाय. यदि आप श्री गुरुओं का सेवन करेंगे, если вы будете делать севу Шри Гуру, तो गुरुओं के सेवन करने से यावत प्रकार की सब सहायता मिलती है, सब साधन सिद्ध होते हैं. тогда благодаря этому вся садхана станет совершенной. कैसे होते हैं? Каким образом? जो जल मूल दिए फल फूलन. जैसे पेड़ का जो मूल होता है उसमें पानी दे देते हैं तो उसकी डाली, शाखा, प्रशाखा, फूल, पत्ती सब में पानी चला जाता है. Подобно тому, как корень дерева, если поливать, то эта вода пойдет сразу и ветки, и листья, везде пойдет. इसी तरह से गुरु का सेवन करने से प्रिया, प्रियतम, स्वामी जी, सब आचार्य सब प्रसन्न हो जाते हैं. И благодаря, и также, подобно этому корню, также если мы гуру будем севу делать, то все будут довольны. Приятам, Свамиджи, आचार्य. जैसे पेड़ के मूल में पानी देने से उसमें नए नए अंकुर आ जाते हैं, लाल लाल कोमल कोमल पत्ता निकल जाते हैं, उनमें फूल आ जाते हैं, उनमें फल आ जाते हैं. इसी तरह से गुरु का सेवन करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं. И также, то есть благодаря гуру севе, да, корень дерева мы поливаем, и плоды, цветы, и все на дереве на этом начинает проявляться. बोले साधन सिद्ध होत ताईचन, जितने यावत साधन हैं, Какие бы ни были различные виды садан, वो सारे साधन सिद्ध हो जाते हैं. все эти саданы становятся совершенными за одно мгновение. और गुरु का संग करने से, गुरु की वाणी सुनने से, गुरु का सेवन करने से जितने यावत प्रकार के हृदय के जो भ्रम हैं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा जो भ्रम होता है मन में, Благодаря общению с гуру, вот эти все бхрамы, это сомнения, которые у нас в уме, может так надо делать, а может всяко, может так, то они уходят, эти сомнения. और तब कहते अंधकार, जो कोई ज्ञान नहीं है, अंधकार में जीव है, वो भी. और श्रम यानी हम अपने मन से कितना कितना साधन करते हैं, कितना भजन करते हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार करते हैं, गुरु के कहे के अनुसार नहीं करते. वो श्रम भी, यानी भ्रम, तम और श्रम, ये तीनों समाप्त हो जाते हैं. И то есть 3 вида брам, шрам и там. Они все заканчиваются благодаря гуру севе. И благодаря, в соответствии с наставлениями, если гуру брам, шрам. А ये क्या ब्राह्म श्राम ये क्या है? अब मैंने अभी बताया ना, ब्राह्म ये ब्राह्म это сомнение. भ्रम होता है कि नहीं, सत्य है कि नहीं है. То есть брам это когда думаешь, है कि नहीं है. если Бихариджи нет, это истина или не то истина. Это брам, это сомнение называется. А шрам джаб кой, шрам это когда не можешь понять правильно что-то и делаешь в соответствии со своим умом, тупо просто понимаешь. В соответствии с этим проблемы приходят. А если не делаешь в соответствии с гуру, то вот это шрам называется, в соответствии со своим умом. И тогда проблемы будут. А там это просто невежество, тамагуна. То есть, все мы, то есть в невежестве, если делать гуру севу, то все эти 3 вещи, они закончатся. И к прашна хо сакта. По этому поводу, а любой гуру, который Бихариджи поклоняется, что в общем гуру больше всего нравится? और जो स्वामी जी के परंपरा गुरु के लिए क्या सबसे बड़ी सेवा, कौन सा सेवा सबसे बढ़िया सेवा है कि गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ता पे चलना, उनके बताए
उनके बताए हुए नाम जाप करना. То есть нужна самая высшая сева, это следовать в соответствии с его наставлениями садхани и мантру повторять, вот как он сказал. То есть самая возвышенная сева это следовать наставлениям гуру. То есть, если, например, есть возможность, там, одежда, это какая-то такая сева, то окей, нету, но самое высшее – это следовать наставлениям. Можно также и подметать, посуду мыть, готовить, там что-то. Это тоже анги севы. Но самая возвышенная сева – это делать баджан свой, баджан в соответствии с его наставлениями. जब हम गुरु आज्ञा मानेंगे और गुरु का सेवन करके चलेंगे तो क्या होगा कि 300 प्रीत प्रतीत बढ़त, फिर प्रिया प्रियतम में अपने आप प्रीति प्रेम बढ़ने लग जाएगा. И то есть, если мы так будем делать в соответствии с его наставлениями баджан, то при там сами собой прийти, то есть любовь нам дадут. और उनकी जो वाणी है जो हम सुना रहे हैं उसमें विश्वास होने लगेगा कि नहीं ठीक कह रहे हैं ये आचार्यों ने जो लिखा है वो ठीक है. प्रतीति माने विश्वास. Пратити это значит вишвас, это значит вера. То есть, если ты слушаешь его и ты говоришь, да, он правильно говорит, все верно. यानी प्रेम और विश्वास То есть благодаря гуру севе према и вишвас, вера, они растут. Твердая вера. И она растет с каждым днем больше, больше, больше. वृंदावन घन नवन्य कुंज दंपत संपत ये सुखदाय. जो वृंदावन घन हमारे श्री वृंदावन जो है, наш Шри Вриндаван, इनमें जो नवनवायमान कुंज कुंजे हैं, там множество новых различных навани кунж. उस वृंदावन का सहज से सेवन करने लग जाता है, उसको सुख प्रतीत होने लगता है, और वृंदावन की जो संपत्ति है, यानी संपत्ति क्या है, प्रिया प्रियतम. И то есть क्या पहले ये जो वृंदावन घन नवन कुंज, जो वृंदावन है, नवन कुंज है वृंदावन के, उनमें जो प्रिया प्रियतम विहार करते हैं, в этих навани кунджи, где प्रियप्риятам बिहार делают, उनकी उस लीला को, वृंदावन की सी शोभा को देख करके, видя их лилы, видя эту красоту Вриндавана, в уме счастье начинает расти, сук. उसके लिए सुखदायी हो जाते हैं. गुरु की आज्ञा मानने से. И то есть сукадай, значит, пиши, значит счастье давать. То есть они дают счастье приятаму. Сух дай давать. Как им счастье? Что самое лучшее счастье? सबसे क्या करना जो प्रियतम सुखदाई हो जाएगी? Сейчас скажу. प्यारे दास श्री हरदास कृपाते हस्ता मल बिरमलाय. गुरुदेव जी महाराज बोले कि भैया स्वामी जी की कृपा से जब गुरु की आज्ञा मानकर जब स्वामी जी का नाम जाप करते हैं तो स्वामी जी उस पर इतनी कृपा कर देते हैं कि हमारे हाथों में जो ये रेखाएं पड़ी हुई हैं, ये गलत रेखा भी सही बन जाती है. И когда с вами же видит, как преданный ученик, он в соответствии с гуру повторяет имена, то даже вот эти линии, которые у нас на руке неверные, они исправляются и хорошими становятся. Да что линии, как им сук дать? Вот ничего интересует. Рек хатики, сук хайседена, есть самаджна, сук. दूसरे पद में कह रहे हैं सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी. हमारे जो सतगुरु हैं वे ही हमारे गुरु गोविंद हैं, वे ही हमारे वैद्य हैं. वैद्य क्या करता है? जैसे किसी की नाड़ी पकड़ता है तो उसके सारे निदान कर देता है, इसकी कौन सी बीमारी, इसको क्या चाहिए. И гуру, он так же, как врач, то есть он по пульсу определяет ему, что надо дать, что сделать. ऐसे जो गुरु होते हैं, также гуру. वो अपने भक्त की, अपने जन की यावत पीड़ा को они своему человеку очень много дают милости и понимают, какая у него рога. Рога значит болезнь. Как ее излечить, эту рогу? Пиши рог. Рог болезни. Да.
दीनो मधुमत प्रेम सु औषध हर उपाद उपचारी। बोलो सतगुरु की सेवा करने से क्या होता है? दीनो मधु, यानी जो प्रिया प्रीतम रूपी जो मधु है, मधु माने शहद, कैसा मीठा लगता है, तो प्रिया प्रीतम रूपी जो मधु है, जो प्यार है, जो लाभ है, то есть любовь приобретам их, как мед, настоящий мед, и их према, гуру он дает своему предавшемуся ученику эту прему. Подобно тому, как учитель, он пульс посмотрел и дает специальное лекарство ему, чтобы эта рога остановилась. Также гуру, он понимает, что в уме ученика, и дает ему лекарство премы. И если лекарство премы получили, то все эти роги уйдут. А что такое? Рог это что? Рог это когда мы вдали от приятам, а заканчивается рога, когда мы к ним приблизились. Если он даже видит у своего ученика маленькую духу, проблему, то он сразу распознает ученик, чем беспокоится, и разрешает эту духу. Дух, запиши, страдания. यानी वैद्य तो किसी की नाड़ी पकड़ करके जब निदान करता है कि इसकी क्या बीमारी है, लेकिन गुरुजन तो बिना नाड़ी पकड़े ही उसका निदान कर देते हैं. То есть врачу нужно пульс трогать, чтобы понять, за руку взять и это. А гуру без пульса сразу видит, что нужно ученику. बोले काम क्रोध ग्रसित संसित मन, जो संसार रूपी वासनाओं का जो काम रूपी क्रोध इस जीव को लगा हुआ है. И в дживе заложены вот эти самсарные желания, кама, кротха, моха, вот это все. Знаешь, да? Крог? Рога. Курога. Это курога. Это очень серьезная, тяжелая болезнь. То есть болезнь реально. Хроническая экзема. ये काम रूपी क्रोध सारे संसार के जीवों को घिस रहा है, निकल रहा है. Эти кама, кротха, они жрут эту дживу, кусают ее. संस्कृत मन तृष्णा हमारी, बोले हमारी तो हमारे गुरुदेव ने बात सारी समझ करके जो भी हमारे मन में तृष्णा थी, हमारे मन में क्या तृष्णा थी, क्या प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की तृष्णा थी, वो हमारी बात समझ करके И гуру, он видит, какая у нас тришна, это жажда, тришна. И он видит, видя жажду эту, он ее удовлетворяет. Он питает, поет ученика. Это Браджабас и Сабтришна. Да, Браджабас. Тришна это жажда, сильное желание. तो संसार रूपी तृष्णाओं को जो क्रोध में फंसा हुआ था, उसको सबको हमारे गुरुजन हरण करके और प्रिया प्रियतम से मिला दिया. То есть и самсарные вот эти вот желания, гуру он их убирает и приводит ученика к приятам. बोले अति निरपेक्ष उदार कहावत. गुरुदेव ऐसे अति निरपेक्ष होते हैं. Гурудев он очень нирапекша, ати нирапекша. Нирапекша это значит, он ничего не хочет от ученика. Удар это великодушный, он все хочет дать, все богатство своего сердца хочет дать приятам. И постоянно дает счастье своим преданным. बिहारी दास से होते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी. गुरुदेव जी बोले हम शरीर के मुर्दे. मुर्दे हम के कोई किसी लायक, मुर्दे किसी लायक थोड़ी होता है. जो मरा हुआ प्राणी को कहते मुर्दे, मृतक. अच्छा, हम शरीर के मुर्दे. हाँ, हम शरीर के मृतक प्राणी जो किसी लायक नहीं थे, उनके भी प्रगट प्रतिज्ञा पारी, उनकी सारी इच्छाओं को प्रकट कर दिया, पालन कर दिया, उनको सब कामना पूर्ण कर दी. कौन गुरु? गुरुदेव. ये मुर्गा, и шарирка, ичха. गुरुदेव जी कह रहे हैं
जैसे हम शरीर के अपने ऊपर подобно тому, то есть приводит пример Гурудев. जैसे हम सब जीव हैं. Например, мы все дживы, мы как мертвецы все. Ни знаний нету, ни баджана нету, просто ходячие мертвецы. То есть, да, это... हम जीवित तो तब हैं जब बिहारी जी का मन उनकी तरफ मन लगा रहता हो. Жизнь у нас будет только тогда, когда мы уже к Бихариджи пришли, поклоняемся ему, и ну вот это вот, это жизнь, это жизнь. А остальные мертвецы просто. И приводит пример для нас. बिहारी दास से होते मृतक की हम शरीर के मुर्दे की प्रगट प्रतिज्ञा पारी. यानी प्रकट में हमने देखा कि हमारी जो प्रतिज्ञा थी उसका पालन किया, हमारे को बिहारी से मिला दिया. Пратигья — это ичха. И то есть нашу пратигью, тоже желание, гуру все исполнил и привел нас к Бихариджи. अब तीसरे पद में कह रहे हैं. И в третьем паде говорит: बोलो गुरु को गुरु श्री हरदास आस धीर को. यावत जितने गुरु हैं, различные гуру, которые есть. सब गुरुओं के भी गुरु हैं स्वामी जी. Самый возвышенный гуру всех гуру — это Свамиджи. Он гуру всех гуру. Каридасджи. तो ऐसे गुरु की जब शरण चले जाते, गुरु किसकी शरण करते हैं? स्वामी जी की शरण तो करते हैं. अब हम किसकी शरण करना है आपको? То есть гуру кому у стоп Свамиджи находится, и мы также. तो इन सब की जो भी जीव उनकी शरणागत होगा, सन्मुख भय अभय कीने. И те души, которые стали шаранагатами, то есть предались, то в этот момент क्या कर देते? Абхай? Абхай, матлаб саб дарна чална. То есть, когда он полностью предался Свамиджи, тогда все страхи, они исчезают из сердца ученика. निज जन जान अपने जन जान करके उसको उसी क्षण वे कर देते हैं, और जो भी मन में संदेह होता है सारे संदेहों को समाप्त कर देते हैं. В уме, какие у нас есть сомнения, все эти сандия, запиши сомнения, они все разрушаются. Сандия. Шанса без сандия, шанса эки. Шанс или сандия и брам — это все одно, это все сомнения. साधन सिद्धांत सब कहत कवि महंत. यावत जितने कवि हैं, जितने महंत हैं, कोई महान पुरुष हैं जिन्होंने कुछ भी लिखा है, उनके लिए कह रहे हैं कि यावत प्रकार के साधन हैं वो सब सिद्धांत हैं, वो सब यही कहते हैं, कवि महंत भी सब यही कहते हैं कि भजन एकांत रस. एकांत का जो भजन होता है वो कैसा होता है? जैसे हंस नीर चीर को. То есть все садханы серьезные, они все говорят, что баджан надо делать эканта, то есть уединенно в одиночестве. Каким образом? Подобно тому, как воду с молоком смешать, если? И что, тогда возможно отделить потом воду от молока? Невозможно. Но ханс, то есть ханс — это лебедь. Он пьет только молоко, а воду оставляет. Он может это разделить. Также и эканта баджан, уединенный баджан, это как лебедь. Он всю самсару откидывает и только пьет молоко Бихариджи. И ум у него направлен только на Бихариджи. निपट नित्य विहार रसरीत को सिंगार. ऐसा निपट नित्य विहार है जहाँ कोई भी पट नहीं है. Пат क्या? Пат मतलब? कोई भी पर्दा नहीं है. Не пат. И такой ни пата, ни те бихар, то есть там нет никакого покрывала. Парда нахи, मतलब क्या? Ни те бихар में पर्दा नही. अगर ऐसा एकांत भजन करना है क्या? नहीं, ये एकांत का भजन है करने से तो उनकी वो प्राप्ति कराएगा ही. हंस के समान भजन है. ऐसा जो नित्य विहार है जिसमें कोई भी निपट, जैसे निपट किसको कहते हैं? आवरण. कोई आवरण नहीं है, पट नहीं है कोई. जैसे ये मैंने पहले लिया तो ये आगे ढक गया. То есть не пат मतलब аваран. हाँ.
То есть нипат это означает аваран, означает покрытие. ऐसा निपट है जिसमें कोई पट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है. То есть или покрывало также. और जिसमें रसरीत को श्रृंगार, इसमें रसरीत का श्रृंगार. Оно все не спадает, и только расарити шрингар, то есть украшенный уже человек расарити, его уже другое не интересует. То есть дорога расы. Там нету, что делай аштаям, сейчас его корми, пои молоком и так далее. Пат матлаб парда. То есть пата означает парда, означает покрывало. И покрывало все снимаются с нас, и мы уже там. И там только расарити шрингар, то есть называется украшение. Человек такой украшен только расой. И кто может быть таким же великодушным, как с вами же? Бесчисленное множество рождений мы страдали, и вот эти страдания с вами же уничтожает. श्री मुख सांवरो गावे रसिकानंद स्वामी जी महाराज हैं, इनकी प्रशंसा को सांवरे बिहार जी महाराज हुर हुर के गाते हैं कि ऐसा गुरु को गुरु कोई और दूसरा गुरु नहीं है. रसिक बिहारी क्या गुरु? रसिक अनन्य भाव है. रसिक स्वामी जी है. То есть रसिक अनन्य स्वामी जी महाराज को ऐसे मन भाते हैं. बिहारी जी так говорит, что स्वयं बिहार जी कहते हैं что сам Бихариджи говорит, что нету подобного с вами же. И не было так подобного гуру, как с вами же, ни до того, ни после не будет. То есть этот пад посвящен полностью гуру. ये हो गया मतलब. और पीछे ध्यान जी ने अपनी वाणी लिखी है जो गुरु ने. तो हमारी बात चल रही थी कल कि तानसेन अकबर बादशाह स्वामी जी से मिलने के लिए निधन किया था और दरवाजे पर अकबर खड़ा है, स्वामी जी से मिलने के लिए अंदर चला गया और दंडौत की. और अकबर Мы остановились на том, что Танцен пришел Нитхиван, стоял у ворот Нитхивана, и потом его впустили, и он встретился там со Свамиджи. तो जब बैठे स्वामी जी की सेवा, दो ही प्रकार की सेवा स्वीकार करते हैं स्वामी जी. के सुगंध के रागवर उन्हें अनुराग समेत, या तो कोई सुगंध इत्र इत्यादि को भेंट करे या कोई राग गा करके सुनाए, तो दो से स्वामी जी. Свами же он принимал духи, то есть для Бихариджи различные запахи вкусные предлагались, и также пение, то есть когда кто-то пел. बैठा हुआ था तानपुरा अकबर के पास था, नौकर अकबर, तो खड़ा हुआ दरवाजे पर अकबर. तो स्वामी जी ने आज्ञा करी, अरे तानसेन कुछ गाओ सुनाओ. तो तानसेन कहता है अपने खवास अकबर से तानपुरा लाओ. तो तानपुरा ले कह न सकत चाहत सुनो स्वामी मुख गावन लगो ताल तान ताल सुर त्याग. तो तानपुरा लेकर के तानसेन गा. तो तानसेन कह नहीं सकता है स्वामी जी से कि स्वामी जी आप मुझे, ये अकबर आपका राग सुनने के लिए आया है. Да, то есть Танцен пришел не один, а он пришел вместе с Акбаром, который был переоделся как слуга и нес его тампуру. И Танцен хотел, чтобы Свамиджи ему сыграл, но он не мог об этом сказать прямо. И вот так вот они пришли, и он хотел, чтобы Свамиджи спел. Но Свамиджи сказал ему: ты сам пой.
तो तानसेन तानसेन ने राग में गलती कर दी, क्योंकि कि मैं गलत गाऊंगा तो मेरे बेटा ये ऐसे नहीं है, लाओ मुझे दो, मैं गा कर बताता हूँ कैसे गाया। तो स्वामी जी गाने लगेंगे तो अकबर को संगीत सुनने का स्वामी जी से समय मिल जाएगा, ऐसा समझ करके तानसेन ने गलत गाया। Микрофон отключи, там какие-то дети орут. Вот, и тогда Тансен для того, чтобы вынудить Свамиджи запеть, он специально совершил ошибку в своей раге, и Свамиджи, конечно, он захотел его подправить и стал сам петь. लगो तान ताल सुरों को त्याग करके गाने लगा, उल्टा गाने लगा। तो मेघ मलार राग के इन गायो और श्री हरदास आयो। जब मेघ मलार राग इसने गाया तो उल्टा सीधा सही नहीं आया। तो स्वामी जी महाराज एकदम से आ गए, तो अना करके बोलते, अरे तानसेन लाओ मेरे लयो तमूरा नजकर माही, तानपुरा को अपने हाथ में। हाँ, क्या बोलता लेओ लयो तमूरा, तमूरा के को तानसेन के हाथ से स्वामी जी ने तानपुरा को ले लिया और स्वयं गाने लगे कि तू गलत गा रहा है, ये सही नहीं है। И то есть, когда Тансен специально в Мегамалай раге, он совершил специально не ту ноту взял, тогда Свамиджи сказал ему, дай сюда тампуру, взял тампуру и начал сам играть. Таня, извиняюсь, что, оказывается, дети у Гуруджи орут. Не у тебя. У меня тоже. Боже мой. जब स्वामी जी ने तान गाया तो एकदम से मूर्तिमंत स्वरूप मल्हार राग, मेघ मल्हार राग मूर्तिमंत स्वरूप से मोड़ करके बारिश करने लगा। स्वामी स्वर जलधर की घनघोर आवाज बरसने लगी, बादल गड़गड़ाने लग गए, तो नीर परम सुख जोरा। И когда Свамиджи начал эту Мегамалая рагу играть, то стали собираться тучи со всех сторон, грозовые молнии пошли и дождь пошел. अब जब स्वामी ने जब राग सुनाया तो राग को अकबर बहुत प्रसन्न हो गया, अकबर अति आनंद अति छायो। И मन में बड़ा आनंद। Услышав эту рагу, Акбар, он погрузился в такое блаженство. Он так был счастлив слышать от Свамиджи эту рагу. रागन सिर नायो, और उस अकबर ने सुनते ही उसका बेहोश हो गया। क्या विभोर्स हो गया अकबर? मतलब मूर्छित हो गया या क्या? जैसे मूर्छित हो जाए। И услышав эту рагу, Акбар, вот он от блаженства, он просто упал без сознания. Там прям. प्रेम जब राग आया, प्रेम आनंद आनंद प्रेम उनके हृदय में ऐसा छा गया कि उस प्रेम जैसे मस्ती आ जाती है, उसकी खुमारी आ जाती है, इस विभोर हो गया, अपनी सुध नहीं रही और स्वामी जी के चरणों में जाकर दिया। स्वामी जी चरणों में प्रणाम किया, क्या किया? सिर रख देते ना ऐसे करके, ऐसे सिर। Акбар. То есть он как бы... स्वामी जी के चरणों में अपने सिर को नवाया। हाँ, मैं तो सोचा अगर वो मूर्छित हो गया तो कैसे प्रणाम हो सकता, तो मतलब नशा हो गया, मूर्छित नहीं। प्रेम मूर्छित नहीं, आनंद में विभोर हो गया, वो उसकी कुमारी आ गई, आवेश आ गई।
आनंद का आवेश। Он не без сознания, он просто в это так сильно погрузился, опьянел от счастья, и потом он поклонился Свамиджи его стопам. श्री स्वामी तब वचन सुनायो, फिर बोले उसे, तानसेन यहाँ को क्यों लायो? क्या बता? अरे तानसेन, तू इस अकबर बादशाह को यहाँ क्यों लेके आया? И тогда Свамиджи сказал Тансену: Тансен, зачем ты сюда притащил этого Акбара? Привел. हम अतीत इनको बहुत भी विघ्न हो तो उपजे विपरीति। अरे तू इसको लेकर के आया, ये क्यों लेके आया है? हम ऐसे राजा महाराजाओं के लिए संगीत, जिनके राजा महाराजाओं के आने से हमारा विघ्न होता है। И с вами сказал: зачем ты привел сюда? Я не встречаюсь с раджами и махараджами. Я не люблю общение царей, потому что они уводят от баджана. बोलो कर जोरी, तानसेन हाथ जोड़ करके बोला, तुम ओरी, हे महाराज, आपके मात से सारे विघ्नों आपकी ओर निहार रहा हूँ, ये आपकी ओर देख रहा है। भवन बसत तुम्हारी सुध आवे, कोट कष्ट नष्ट। जब मैं अपने भवन में रहता हूँ, जब तुम्हारी मुझे सुध आती तो मुझे कोट के कष्ट, करोड़ों करोड़ों कष्ट होते हैं, वो नष्ट हो जावे। आपकी याद मात्र से वो सारे नष्ट समाप्त हो जाते हैं। И Якон Больта, Тансен Больта, то есть Тансен, он сложил руки и сказал: извини, пожалуйста, Свамиджи, но я очень был счастлив видеть тебя и привести этого царя к тебе. मतलब क्या बताया मैं महल में क्या? वो क्या बोला? तानसेन, महल में आपका देखना चाहते हैं क्या? ये कह रहा है, नहीं, ये कह रहा है कि मैं जब अपने भवन माने घर, मैं अपने घर में रहता हूँ, तब तुम्हारी जब सुध आती है, आपकी सुध आने मात्र से मेरे कोटान कोट कष्ट जो होते हैं वो समाप्त। अच्छा, जब मैं आपके बारे में सोचता. И Тансен сказал: когда я живу у себя дома, то просто при мысли о тебе, Свамиджи, мои страдания уходят. तद विभूत तुमरे काज भयो बपुदीन, हे महाराज, सारे विभूति राज मात्र के लिए यहाँ आया है। काज भयो बपुदीन, आज उसका जितना भी कार्य है वो सब बड़े दिन है, वो सब पूरा हो गया महाराज। आज जितना भी कार्य है सब पूरा हो गया। किसका कार्य? अकबर का? मतलब अकबर का। ये तानसेन अकबर है कि महाराज ये सारे राजपाट को, सबको, विभूति को राज छोड़ करके तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया है। तो सबसे बड़ा कार्य क्या है, काम क्या है? बोला आपके दर्शन करना। तो दर्शन इसको हो गए। И Тансен сказал: самая главная наша работа какая? Не царством заниматься, а получить твой даршан. И вот сегодня мы получили твой даршан, и все наши цели завершены. जवन मन अति अमल। महाराज आप सोच रहे हो कि ये जवन, ये मुसलमान है, ये मुसलमान भी नहीं है, मन से बहुत अति पवित्र है, और अकबर परम प्रवीण और बड़ा चतुर है। ये आप ऐसा ना समझे कि ये मुसलमान है। И также Тансен сказал: с вами же не думай, что это мусульманин. Он очень чистый умом, и он также очень искусный и умный, Акбар. अकबर कहत भयो कर कृपासंद नरको हम ओरी। फिर अकबर ने दोनों के स्वामी जी से प्रार्थना, नरको हम ओरी, मारी आप
हमारी तरफ आप बड़ी कृपा बड़ी दृष्टि से एक बार देख दो। हाँ। И тогда Акбар, он сложил руки и обратился к Свамиджи и сказал: о, Свамиджи, посмотри, пожалуйста, и в мою сторону. तुमरो अब दासा, मैं अब आपका दास हूँ, ये मन आशा, और मैं यही मन से आशा करता हूँ कि मैं आपकी ही करूँ, आपकी ही सेवा करूँ, ऐसा मुझे अवसर प्रदान करो। И он также сказал, Акбар, что желание моего ума это делать севу тебе, Свамиджи. स्वामी हंस बोले तुम जाओ। स्वामी जी हंस करके बोले अकबर से, क्या बोले? नाव बैठ जमुना फिर आओ, तुम नौका में बैठ करके जमुना जी में स्नान करके आओ। Нока Бетхе снан карке ача. И он сказал ему тогда, Свамиджи, иди сходи на Имун, делай там омовение и приди назад. स्वामी जी जब इस तरह से जब हाथ जोड़ के प्रार्थना की स्वामी जी से, तो स्वामी जी अकबर से बोले कि भैया तुम जाओ और नौका में बैठ करके जमुना जी आओ, स्नान करके आओ, दर्शन करके। अच्छा। И मैं ये बता दिया, जो तुम जाओ स्नान करो यमुना में और वापस। जो निज नैन आवो सो हमको सब आन सुनावो। जब तुम वहां नदी पे, और जो भी तुम नैनों से अपने नेत्रों से देखो उस करके बताना क्या देखा आपने। И он сказал ему: иди на Имуну, и что ты увидишь там, мне потом расскажешь. और शाहजहां यमुना, अकबर बादशाह गया और यमुना जी में स्नान करके दर्शन करके आया। लख्यो नैन सो मुक्ते गायो। И Акбар так и сделал, он пошел на Имуну, принял там омовение и потом вернулся. नायक कहत भयो गाथा, सिर नवा करके स्वामी जी के चरणों, और जो देखा था वो सब अकबर बादशाह ने स्वामी जी को बताया। И склонившись перед ним, он рассказал ему, что он увидел. Акбар Свамиджи. धरो सिर माथ हाथा, तब स्वामी जी ने अकबर रख दिया। Свамиджи Акбар हाथ रख दिया क्या? सिर पर। И тогда Свамиджи, услышав это, он положил ему руку на голову и благословил Акбара. तब नक से मुख ते सुध बहना, ऐसे निज नैना, तब मुख से कुछ ऐसे वाणी निकली, कहत लख्यो ऐसे निज नैना, और उनके रूप को। И он, Свамиджи, начал говорить ему что-то. अद्भुत तट रचना अत भारी, हम कछु लखी कृपा अनुसार। हे महाराज, जमुना नदी के तट की बड़ी सुंदर रचना है। कृपा अनुसार, आपकी कृपा से हमने बड़ा सुंदर जमुना जी का दर्शन किया। Да, то есть и Акбар стал говорить, что слава Ямуны безгранична, и то, что я увидел, не подлежит описанию словами. और क्या क्या देखा है अकबर ने, तो स्वामी जी को बता रहे हैं। नीत सित नील मन, हरित रंग बिन पार, वर्णन करे विदन करत विस्तार। बोलो, अकबर ने घाटों में क्या देखा? रक्त माने लाल रंग के मणि, नीले रंग के मणि, सित माने सफेद रंग के, नीले रंग के, आदि के इतने रंगों के मणियों से जटित हरे हरे रंग के ऐसे घाटों को देखा।
А он стал описывать, Акбар, что берег Ямуны был усыпан драгоценными камнями различных цветов, и красные, и белые, и синие, разные очень необычные камни. तो अकबर बोला, हे स्वामी जी महाराज को वर्णन करे, ऐसी हमने जमुना जी के घाटों की सुंदरता देखी, पन्ना पुखराज नाना प्रकार के रंगों से जटित मणि मोती हैं, जटित ऐसी जमुना जी के घाट हैं, उन घाटों का कोई वर्णन कर सकता, वो वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा कौन कवि है, वेदन करत विस्तार, उसका तो ब्रह्मा भी कोई वर्णन नहीं कर सकता है, मैं तो क्या कर सकता हूँ, ऐसी मैंने देखी है जमुना जी के घाटों की। Акбар говорит, что даже Брахма не может описать, что уж говорить обо мне, ни поэты, никто не может описать красоту этих гатов, этих берегов Ямуны, которые украшены камнями и жемчугом и очень прекрасны. पट्टी 20-20 गज आही और अद्भुत चिन्ह माही। बोला हमने एक महाराज बात देखी, 20 जो घाट है उनकी पट्टी है, किनारे जो उसको कहते हैं घाट, उन घाटों की जो बोलो 20-20 गज आही अद्भुत चित्र ताश के माई, ऐसे अद्भुत चित्रों से रंजित हैं, बहुत सुंदर घाट बने हुए हैं। То есть эти гаты, берега Ямуны очень необычные, очень красивые, и невозможно описать их красоту. बोले एक घाट हिरण्य मंडित, एक घाट कैसा है, हीरा पन्नाओं से मंडित है, सुशोभित है, 1.25 गज खंडित, और महाराज एक सीढ़ी 1.25 गज टूटी हुई है। И один гад, он увидел и бриллиантовый гад, и там ступенька одна была немножечко как сломана, что ли, что-то такое там было. स्वामी वदत वचन और धारो ता खंडित को बेग समा। स्वामी जी महाराज बोले कि तुम बादशाह हो तो ऐसा करो, राजी के सीढ़ी का जो कोना टूट गया है, खंडित हो गया है, там, значит, уголок ступеньки был отломан. И Свамиджи сказал ему: ну ты великий царь, богатый, почини, пожалуйста, эту ступеньку. अकबर कहते कोट तब अकबर बोला स्वामी जी से, हे स्वामी जी महाराज, करोड़ तन यानी शरीर प्राप्त करूं, एक शरीर नहीं करोड़ शरीर प्राप्त करूं, फिर भी और पृथ्वी का राजा महाराजा बन जाऊं, फिर भी के कोने की मरम्मत सही नहीं करवा सकता हूं। И тогда Акбар ему сказал: даже если я миллионы жизней буду рождаться царем и буду не просто индийским царем, а вообще всего мира, все равно я не смогу починить эту ступеньку. Буду не в состоянии это сделать. मोती तो न तनक बने आवे, मुझसे तोड़ी भी पाएगी, तुम्हारी कृपा पाए हुए गावे, तुम्हारी कृपा हो तो सब, मेरे बल से कुछ नहीं हो सकता है। Если будет твоя милость, тогда это возможно, а своей силой я не смогу это сделать. तुम अद्भुत वस्तु इसमें न मोर मन आई। हे महाराज, तुमने अद्भुत वस्तु दिखाई है, श्री जमुना जी के सुंदर दिव्य जमुना आया है, अब मेरे मन से वो अलग नहीं हो, मेरे नेत्रों में भरी हुई है, मन में भरी हुई है, वो विस्मय न मोर मन आई। मेरे नेत्र में भरी हुई क्या, और बाद में क्या? जो जमुना जी के दर्शन, दिव्य जमुना जी के जो दर्शन किए हैं, उनके हाथ और सीढ़ियां ऐसी दिव्य सुंदर हैं, वो जो उसकी जो शोभा है, वो मेरे मन से अब निकल नहीं रही है, विस्मय नहीं होती है।
मेरा मन में निकल रही नहीं, मेरा मन में फंसा हुआ ये सब, ठीक है? हाँ। То есть вот эту картину, которую ты мне показал, я увидел эти прекрасные гаты. Теперь это уже никогда из моего ума не выйдет, и это очень, меня очень сильно поразило и глубоко вошло в меня. ईश्वर अखिल विश्व को साजे कोट ब्रह्मांड विराजे। हे महाराज, आपकी विश्व की शोभा है, मैं उसको क्या कर सकता। रोम कोट ब्रह्मांड विराजे, आपके रोम रोम में करोड़ विराजमान होते हैं। आप ऐसे हैं स्वामी जी, बहुत कहने लगा कान से वो अकबर। हाँ, रोम रोम विराजमान, क्या रोम रोम विराजमान? अनंत शक्ति आपके रोम रोम में विराजमान है। Ананта Шакти. То есть у тебя в каждом волоске очень огромная, как сказать, безграничная шакти. Каждый волосок обладает безграничной шакти твой. Энергией. चराचर में अनंत कोटि अपार विराजमान है। तनधारी चर अचर विकारा, कोई तनधारी वाले हैं, कोई अचलने वाले हैं, कितने प्रकार के जीव हैं? उनका मैं क्या कर सकता हूँ, कोई विस्तार नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हैं। हाँ, समझ गया नहीं, अनंत जीव में कितना और क्या मतलब ये? जो कह रहे हैं ये से चरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। कोई तनत के शरीर के चलने वाले हैं, कोई अचलने वाले हैं, नाना प्रकार के जीव हैं। हाँ, то есть бесчисленное количество джив существует в различных вселенных, и невозможно описать, сколько их, какие они. जो बंदा निष्ठन करे साथ, जो जीव अपना मान, जो बिहार जी महाराज की बंदगी करता है, सेवा करता है, भजन करता है, हर अपने आधीन दिन दास धर्म निर्धार, हरि समझ करके उसको अपना दास समझ करके उसका धर्म करते हैं। हाँ, А те дживы, которые поклоняются Бихариджи, поклоняются Свамиджи. ये जीव जो उपासना करता है, ये क्या मतलब? ये बहुत कम है क्या? जो बिहार जी को अपना मान करके उपासना है कि मेरे बिहारी जी हैं, ऐसे जो जीव मान को उपासना करते हैं तो बिहार अपना दास यानी सेवक मान लेते, ये हमारा है, तो उसको फिर मान करके निभान करते हैं, ये मेरा है, उस पर कृपा करते हैं। И те дживы, которые поклоняются Бихариджи, полагаются на него, тогда Бихариджи их считает своими и проливает на них свою милость. А जो जीव उपासना नहीं करते तो Бихариджи कृपा नहीं देते हैं ना? बिहार जी को हम अपना मानते हैं। हाँ, जो उपासना करते हैं अपना मानते हैं। अपना मान के जो उपासना करते हैं उनको बिहारी स्वामी जी अपना मानते हैं, तो कृपा करते हैं। हाँ, ये बता दिया। हाँ, बता दिया। वह है अखिल विश्व को नाम और मानक दास आपके साथा। मानते हैं कि सारे अखिल विश्व के नाम, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, तो उसके साथ हो जाते हैं, उनको अपना मान लेते हैं। मान के साथ अपना दास मानकर उसके साथ रहते हैं। हाँ, и та душа, которая предается Бихариджи, Бихариджи ее считает своей, и он начинает жить вместе с ней, рядом с ней тогда. भोग लगाए उठाए स्वभाव है दास भाव। कोई जो
बिहारी जी के स्वामी जी के भक्त हैं, वो बिहारी जी महाराज को भोग लगाते हैं, उनको शयन कराते, उनकी आरती पूजा करते हैं, उनको उठाते हैं, उनको सुलाते हैं, ऐसा करते हैं तो ये दास भाव प्रकट हो जाता है। दास भाव तभी बनता है, जब ऐसा नहीं करेंगे तो दास। हाँ। Вот это даса бхава, то есть бхава служения, настроение служения проявляется только в том случае, когда преданный, он заботится о Бихариджи, он его будит, он предлагает ему кушать, он его укладывает спать, он ему проводит арати и пуджу. И тогда вот эта даса бхава начинает проявляться. जो ऐश्वर्य रूप हर जाने, और जो कोई हरि को ऐश्वर्यता से देखता है, ऐश्वर्य जैसे विष्णु भगवान ऐश्वर्यशाली है, तो उनको कीड़ा मकोड़े के समान अपनापन देते हैं। हाँ। А те, кто поклоняются как вот в Айшварье настроение величия, тогда они себя считают там червями, какими-то низшими такими по сравнению с Всевышним, то есть иерархическое такое поклонение. तो प्रभु पद कैसे नर जब ऐश्वर्य भाव से मानते हैं और कीड़ा मकोड़े के समान उसको मानते हैं, प्रभु के चरणार बिंदों में कैसे ध्यान लगावे, कैसे ध्यान लग सकता है? То вот такие в Айшварья Бхаве души, как они могут думать, медитировать на Бихариджи? अब जैसा भाव होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम ठाकुर को ऐश्वर्य से देखेंगे तो ऐश्वर्य, हम माधुर्य से देखेंगे तो हमको माधुर्य प्राप्त होगा। हाँ। И с какой бхавой мы поклоняемся, такого мы плода и достигаем, то есть результата. Если мы поклоняемся иерархической бхавой, айшварии, то есть тогда мы такой получаем результат. А если мы с матхурией, со сладостью, тогда мы получаем другой результат. तो यहाँ कहता है ताते तुम ईश्वर हम दासा, कर्म यह विश्वासा। अब अकबर बादशाह बोला हम, तुम ईश्वर हो, हम दास हैं, से यही विश्वास है कि आप हमारे ईश्वर हैं, मैं आपका दास हूँ। हाँ। И у Акбара была такая бхава, то есть он считал Бихариджи Свамиджи Ишваром, господином, а себя дасом, слугой. दास भाव मोह मन उपजाओ, हे स्वामी जी महाराज मेरे भाव प्रकट कर दो, उपजाए दो। मोह माफ कछु कह टहल बता, मेरे लायक कोई ऐसी सेवा बताओ जिसको मैं कर सकता हूँ। ये तो ऐसी दिव्य मोती पुखराज है उस सीढ़ी में, मैं सारे कोष को उसमें लगा दूं, एक मोती की कीमत नहीं चुका सकता हूँ। हाँ। И он хотел делать севу, этот Акбар. Он сказал, но эту севу я не могу сделать, даже если я все свое царство продам, я даже один бриллиант не смогу купить такой цены, чтобы, такого же качества, чтобы заложить ступеньку эту. स्वामी तासु की बानी, स्वामी जी उस अकबर की गए और भक्त विवेक सत्य प्रण सानी, और विवेक से सत्य प्रण वाली बात उनको बताया। हाँ। स्वामी जी विवेक से सत्य बात किया क्या? हाँ, भक्ति विवेक उनको गए, उसके मन की बात को समझ करके स्वामी जी ने। हाँ। Свамиджи понял настроение ума Акбара и ответил ему. मन आई, फिर स्वामी जी ने आज्ञा दी तो अकबर को बड़ा सुख प्राप्त हुआ, और जैसे स्वामी जी ने टहल से वैसी अकबर ने करी। हाँ। И тогда Свамиджи дал ему наставление соответствующее, и Акбар, он очень был счастлив услышать об этой севе. और क्या? बंदर को सो मन चना
विप्रद देव डराए। स्वामी जी बोले भैया यदि तुम उस सीढ़ी मरम्मत नहीं करवा सकते हो तो बंदरों के लिए 100 मन चना डलवाया करो, बंदरों की सेवा किया करो। हाँ। И Свами же сказал, хорошо, если ты не можешь починить эту ступеньку, тогда сделай, пожалуйста, севу обезьянам, корми их горошком. Там, по-моему, 4 тонны каждый день, что ли. वृंदावन के वृक्षसुर को सताए। और दूसरी सेवा क्या बताई? बोले ये वृंदावन की जो वृक्ष हैं इनको कोई सताए नहीं, इनको कोई काटे नहीं, करो सब पे अंकुश लगा दो, कोई वृंदावन की लताओं को नहीं काटे। मतलब ऐसा नियम करना जो कोई लाता नहीं कट कर सकते ना? अच्छा. И поскольку он царем был, он ему также сказал, издай такой указ, чтобы никто не мог ни одну лиану, ни одно деревце во Вриндаване порубить. Ну что, запрет введи такой. इस प्रकार से स्वामी जी की वाणी को सुन करके अकबर फिर बोला। И услышав такие наставления Свамиджи, Акбар сказал ему, ये तो भाई और कछु भाषो शिष्य भाव मोते मन रहा, ये तो सब मैंने समझ ली, लेकिन आप शिष्य भाव मुझे अपना शिष्य, मुझे आपने शिष्य भाव क्या स्वीकार कर? हाँ, शिष्य मानो, भाव मानो मुझसे, मैं आपका शिष्य। Сказал он, я понял, я сделаю эту севу, но также прими меня как своего ученика. प्रसाद साधु मिल पावे। और महाराज मेरे मन में एक ऐसी बात आ रही है कि संतों का भोग प्रसाद भी बनना चाहिए, संत जो है मिल करके प्रसाद पावे। हाँ, ये अकबर बताया ना इनका मांग। И Акбар сказал, также мне бы очень хотелось кормить садху, каждый день. सुनिए वचन बदत भय स्वामी रसिक सुरमन अंतर्यामी। इसको बात को सुन करके स्वामी जी समझ गए उसके मन की बात को। Свамиджи, услышав его, очень хорошо понял его настроение. कहत वचन पहले हम भाषण आखे सो तो घर राखे, हम जो तेरे कट हो गया, आप जो तेरे को क्या, जो मैं वाणी कह रहा हूँ उसको अपने मन में धारण करना। अभी स्वामी जी बोलेंगे अभी तो खाली इतना जो कहूँ उसको मानना। То есть то, что я сказал, вот это все сделай вначале. तो अब बोले स्वामी जी अब तुम जाओ, बुलाए आओ, जाओ, जब हम तुमको बुलाएं तब यहाँ आना, पहले नहीं आना। И также Свамиджи сказал, а сейчас ты иди, пожалуйста, и придешь только тогда, когда я тебя позову, а без этого пока не приходи, без приглашения. नंबर होए न जो इष्ट लड़ावो, आप नंबर 3 होकर के अपने इष्ट को लाओ और जाओ, ऐसा स्वामी जी ने उसके लिए आज्ञा कर दी। А ты сейчас иди, возвращайся в свой дом, дворец, и там со смирением поклоняйся своему божеству. धर्म रूप अकबर अतनी को हृदय स्वामी जी को, अकबर जो है बड़ा धर्मवान था, बड़ा अच्छा विवेकी ज्ञानवान था, के हृदय की बात को समझ गया। Акбар был очень праведным царем и соблюдал дхарму. और बोला स्वामी जी रह सकता हूँ, मैं आप कह रहे हैं कि जब मैं बुलाऊं तब आना, तो मैं दर्शन के बगैर आपके नहीं रह सकता हूँ। जब अकबर ने ऐसी बात
तो स्वामी जी बोले नहीं, हम बुलावे तभी आना। हाँ। Он сказал, я не смогу без твоего даршана теперь прожить, я очень полюбил тебя. Но Свамиджи сказал, нет, ты все равно, когда я тебя позову, тогда должен прийти, не раньше. स्वामी जी बोले, अकबर तू जब हमारे बगैर नहीं रह सकता है तो तू एक हमारा चित्र बनवा ले, उस चित्र को अपने साथ ले जा, उसके दर्शन कर लिया करना। Свами сказал, хорошо, если ты не можешь без меня жить, тогда скажи художнику, чтобы он меня нарисовал, сделай эту картину и поклоняйся ей. Она будет не отлична от меня. चित्रकार को तवे बुलायो, श्री हरदास चित्र लिखवाया। चित्रकार को अकबर ने उसी समय बुलवाया और स्वामी जी का चित्र बनवाया। Он, значит, Акбар позвал художников, и они нарисовали очень красиво Свамиджи, и он стал, он забрал потом эту картину оригинальную. चित्र को प्राप्त करके बोला अकबर, स्वामी जी मेरे इष्ट आप। मेरे इष्ट आप क्या बोला? मेरे इष्ट आप ही हैं। चित्र को प्राप्त। अच्छा, то есть он когда увидел уже картину завершили, आप मेरे इष्ट हैं, и сказал, ты мой ишт, ты мое божество. А Бихариджи Читра नहीं किया? बिहारी जी का नहीं किया स्वामी। Я спросила, а Бихариджи не рисовали? Нет, Свамиджи. असन तुमको शीश नवाए। बिहार जी स्वामी जी, मैं और पान तब ही करूंगा जब पहले आपको कराऊंगा, आपको शीश नवा करके दंडवत प्रणाम करके ही भोजन करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, क्या मैं भोजन करूंगा जब आपको लगाऊंगा या क्या? हाँ, जो चित्र ले जा रहे तो लगाऊंगा, आपको जलपान कराऊंगा, इसके बाद आपको सिर नवाऊंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा, इसके बाद ही भोजन पान करूंगा। Понятно. И тогда Акбар также сказал, я вот этой картине, то есть тебе я буду предлагать воду и пищу, потом я буду кланяться и кушать эту, только вот после предложения тебе эту пищу всю. याई क्षणधारी और तुम ही मेरे नित्य विहारी। बोला, हे स्वामी जी मैंने ये प्रतिज्ञा इसी क्षणधारी कि मेरे नित्य विहारी आप ही हैं, विहारी सब कुछ सर्वस्व आप ही हैं। И Акбар сказал, это мое обещание, клятва тебе, что ты для меня и есть нитья Бихари, ты все для меня, всем являешься. और आज्ञा मानायो भाव सहित ताते उठ धायो। और स्वामी सिर झुका करके और आज्ञा मांग करके उठ करके चल दिए। И поклонившись Свамиджи, он встал и попрощался и ушел. पूछ और हूँ यहाँ अतीता परम पुनीता। फिर पूछी अकबर ने बाहर जाके, कोई कहते हैं क्या यहाँ पर? मेरे कहते हूँ परम, हम उनको भी दर्शन करते हुए जाएं। क्या कोई पूछी? अकबर बादशाह ने बाहर निकल के निधवंजी से किसी व्यक्ति से पूछा, कोई यहाँ वृंदावन और भी स्वामी जी के अलावा महात्मा रहते हैं क्या? अच्छा, Акбар Сапуча. Акбар вышел из Нитхивана и какого-то там спросил преданного, а есть ли тут еще какой-то садху, подобный Свамиджи? तो उस व्यक्ति ने बताया, जब रूप सनातन जीव पे आए तिनको नरक बहुत सुख पाए। हमारा यहाँ रूप जी, सनातन जी, जीव गोस्वामी और भी महात्मा रहते हैं। तानसेन उनके पास गया।
эта личность сказала им, что есть Рупа и Санатана, такие вот святые, и Танцен повел туда тоже Акбара. फिर रूप जी थे, सनातन जी वो साईं सभी से पूछ, महाराज कोई सेवा है तो मेरे नाल कोई सेवा हो, जिस वस्तु से आपको सुख प्राप्त होता वो मैं आपको. И Акбар, он пришел к ним и попросил также и у них севу. Спросил, можно я вам какую-то вот так же окажу севу? तो रूप हैं, महाराज हमको गौचारण करने के लिए भूमि नहीं है, मांगे धरती को छुपावे, महाराज कुछ धरती हमको मिल जाए और कुछ हमको पुराण लिखने, उसके लिए कुछ कागज मिल जाए. И они сказали, нам нужна земля для того, чтобы коровы там могли пастись, а также нам нужна бумага для того, чтобы писать книги. वेदा कुछ ये ऋषि वेद पुराणों में जो लिखा हुआ उनको कुछ लिखना चाहते हैं, उसके लिए कोई व्याकरण इत्यादि के जो भेद हैं लिखना चाहते हैं, इसलिए कागज नहीं है तो कुछ कागज प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसे उन्होंने मानी. То есть, они попросили бумагу для того, чтобы Веды, Пураны, они переписывали и там свои писали сочинения, книги. И вот он им тоже дал бумагу эту. बनावे मत थापे और धर्म चलावे, उन कागजों में कुछ हम अपने ग्रंथ लिखेंगे, वो जो है जो हमारा धर्म है कुछ उसको हम लोगों को बताएंगे, इसलिए कुछ कागज कुछ धरती दे दो. Они сказали, мы пишем свои книги, объясняем людям о дхарме, поэтому нам очень нужна бумага. तो प्रेम शैली अब इतना ही रखो, मैं एक समाज में जा रहा हूँ इस समय समाज. हाँ ठीक है. तो हम कब मिलेंगे, कल या कौन सा दिन? कल. अच्छा, कितना समय? इसी समय या सवेरे? इसी समय. यदि मैं सुबह कोई समाज में हुई तो मैं आपको सुबह फोन कर दूंगा, सुबह मिल लेंगे. ठीक है. धन्यवाद. श्री हरिदास. सब हंसो. सब хорошо. अभी ठीक है. Сейчас Гуруджи уходит на самадж, прощается с нами. Если получится, то утром, а если нет, значит в это же время. Завтра. Как получится. Шри Харидас. Часто надо. Шри Харидас. Шри Харидас, я руки не могу сложить. करो. क्या? भजन करो. ठाकुर जी का ध्यान करो. सब भजन करो, ठाकुर जी का все делайте бхакти, медитацию на Такурджи. अकबर भाषा किस तरह से ऐसा दूसरे धर्म को मानने वाला स्वामी जी शरण में आने से कैसा माधुर भाव में डूब गया, कितना भजन कर लगाता है, स्वामी जी को अपने इष्ट के समान मानता है, कितना भोग हो जाता है. ऐसे हम लोग भी स्वामी जी के शरण में आ गए हैं और स्वामी करें, अपने इष्ट के समान उनको माने, उनका ध्यान करें, भजन करें, भाव में डूब जाएं. ऐसा ही करना चाहिए. То есть необходимо вот так погружаться в эту баву сладостную, что с вами же это наше ишт, наше божество, и делать баджан в этом настроении. और क्या अकबर का ऐश्वर्य बाप हुआ या क्या? मैं इस कहानी से ऐसा समझ गया. मैं ये कह रहा हूँ अकबर बादशाह ऐसा एक दूसरे धर्म को है, मुसलमान धर्म को मानने वाला, और स्वामी जी के शरण में डूब गया, कितना भाव में विभोर हो जाता है, ध्यान कर. ऐसे आप भी स्वामी जी के शरण में आए हो तो स्वामी जी का मातृ भाव से ध्यान
प्रेम की लीला में डूब जाओ, उनका एमनेस नाम जाप करो। हाँ। То есть этот Акбар, он был мусульманином по рождению, а потом он настолько поменялся, что принял Свамиджи. И мы тоже, непонятно кто кем был, и сейчас Свамиджи. И поэтому очень прекрасно, и мы очень счастливы, удачливые, что можем погрузиться в эту бауму. Тики. Тики то правильно. Verdade. Шахарида, спасибо большое, мы поклоним. Шахарида.